અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ ત્યાંથી પામ જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધે વંદે તદ્ગુણલબ્ધે જય સદગુરુ. ભેજી એક પ્રશ્ન છે આજે આ વાક્યના અનુસંધાનમાં, સ્વચ્છંદ નિરોધના અનુસંધાનમાં. સ્વચ્છંદ નિરોધ અને જીદ એ બેમાં શું ફેર છે? જેમ કે એક્ઝામ્પલ, માનો કે પૂજ્યબેનશ્રી મને કંઈ સમજાવે કે આ સંગ તમારા માટે યોગ્ય નથી, તો હું સારું દેખાડવા એ વ્યક્તિની નિંદા પણ કરું કે સાચી વાત છે બેન, મને એ વ્યક્તિ ગમતી નથી, આમ છે તેમ છે. પછી હું મારા મને એમ સમજાવું કે બેનશ્રી તો કે એમને આગળ પાછળના રેફરન્સની ખબર ન હોય અને મારું વર્તન તો એવું ને એવું રહે. એ જીદ છે, સ્વચ્છંદ નિરોધ છે, અને બંનેમાં શું અંતર છે? પોતાના પરિણામથી ખ્યાલ આવે. સ્વચ્છંદ નિરોધ એટલે પોતાના મન મરજીથી ન કરવું, એનો નિરોધ. અને જીદ એટલે પોતે જે પકડી રાખ્યું છે એ કરવું. જીદ કોઈ સ્વચ્છંદ નિરોધ ન કહેવાય. જીદ તો સ્વચ્છંદમાં જ આવે. એટલે તમારો પ્રશ્ન કોન્ટ્રોવર્સી છે. હા, તમે સ્વચ્છંદ નિરોધ એમ બોલ્યા. હા, સ્વચ્છંદ અને જીદ, જીદ જે છે એ સ્વચ્છંદના માસીનો દીકરો છે. એટલે એ સ્વચ્છંદની જુદી જુદી પર્યાયો છે. પણ એમાં એક ધ્યાન રાખો, દ્રઢતા અને જીદ, કે એક દ્રઢતા રાખવી અને એક જીદ પકડી રાખવી. તો મિથ્યા આગ્રહ એ જીદના અંતર્ગત આવે છે, અને કોઈક વસ્તુ યોગ્ય છે તો એમાં દ્રઢ રહેવું, તો એ દ્રઢતા કહેવાય છે.
સર્વથા એવું પણ જીવ નથી. પોતે નિર્ણય કરે તો ભૂલથાપવાળો નિર્ણય હોય કે મારું તો ડરતા છે, આ જીદ નથી. માનો કે બેનશ્રી મને કીધું તો મને એમ લાગે કે બેનશ્રી તો કે એમને આખો પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ નથી, તો એ મારું એમાં જીદ છે, મારો સ્વચ્છંદ છે, પણ મને પકડાતો નથી. એ તો જેટલી જેટલી પરિણામોની વિશુદ્ધિ હશે એટલા જીવના પરિણામ પકડાય છે. ઈમાનદાર પોતાની જાતના સાથે જે હોય તો એને બધું પકડાય, પણ ઈમાનદાર ન રહેવું હોય તો પછી તો પકડાય છતાં પકડવા ઈચ્છે નહીં. એવું હોય ને ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ હોય કે આ વસ્તુ આપણી યોગ્ય નથી, કેમ કે સત્સંગથી એટલી સમજ તો આવી જ હોય ને, એટલી વિશુદ્ધિ તો આવી હોય, છતાં પણ રાગ ભાવથી અથવા અન્ય અહંકાર ભાવથી આ કશાયો છે ને એ જીવને ઊંધા રાસ્તે જ લઈ જાય, સીધો રાસ્તો દેખાવા જ ન દે. મોહેન સમૃતમ જ્ઞાનમ સ્વભાવમ લભતે નહીં. એટલે મોહથી આવૃત જ્ઞાન છે એ સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય નહીં. એટલે એ જીવે નક્કી કરવું પડે, નહીં તો તથારૂપ જ્ઞાની પુરુષને, વિશેષ જ્ઞાની પુરુષને પૂછવું કે ભાઈ આવા મારા પરિણામ છે તો તમને શું લાગે છે, એના હિસાબથી કરવું. આપણી જ્યાં ચોંચ ન ડૂબે તો વિશેષ જ્ઞાનીને શરણમાં જાવું. ઘણીવાર આપણા બુદ્ધિ ન ચાલતી હોય. જો બંને વસ્તુ છે, લોકોના અભિપ્રાયથી પણ ન જીવવું અને પોતાના સ્વચ્છંદી અભિપ્રાયથી પણ નહીં જીવવું, બંને બરાબર છે. આમાં મહાપુરુષોના જીવનનું ઉદાહરણ લેવું. મહાપુરુષોને જ્યારે જગત પરેશાન કર્યું, ચાહે નરસિંહભાઈ હોય, નરસિંહ મહેતા હોય, નરસિંહભાઈ કે મીરાબાઈ હોય કે કોઈ પણ હોય, તો લોક દૃષ્ટિથી ન ચાલ્યા, પણ પોતાના સ્વચ્છંદથી પણ ના ચાલ્યા. એટલે એમના અંદર એટલી વિશુદ્ધિ છે કે મારે કૃષ્ણ સાથે પ્રીતિ છે તો છે, તમને યોગ્ય લાગે અથવા ન લાગે એમાં મને કંઈ વાંધો નથી. આ દ્રઢતા છે એમની. ભગવાન સાથે પ્રીતિનો સવાલ જ નથી ભૈયાજી, ભગવાન સાથે પ્રીતિનો સવાલ જ નથી. અને બીજું, એટલા ઊંચા સ્તરના સંતોના ઉદાહરણ પણ આપણે ન લઈ શકીએ, કારણ કે એમાં તો એક ઘણી હાઈટ હોય. એમ સર્વથા નથી. ઘણા વખત ઘણીવાર એમ હોય કે જે ઘણા પુરાના થઈ ગયા છે ને, જ્યારે આપણે એ પરિસ્થિતિમાં જોઈએ કે એવી જ પરિસ્થિતિ એમની હોય, એ જ પરિસ્થિતિમાં બધા ગુજરે છે, પણ પુરાની વસ્તુ આપણને વધારે મહાત્મ્યવાળી લાગે, હંમેશા લાગે. પણ કોઈ વર્તમાનમાં કોઈ સાથે એ વસ્તુ ઘટતી હોય તો એટલી મહાત્મ્યવાળી ન લાગે. તમે પાછળ જઈને જુઓ ને, એવી જ પરિસ્થિતિ હતી, એ આ જ પરિસ્થિતિ છે આજે, અત્યારે પણ આપણે સામે એવી જ પરિસ્થિતિઓ આવીને ઊભી રહે છે. તો બધાનો ઉપાય ઈમાનદારી છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અને કૃપાળુદેવ બધું પછી થાકીને એમ કહે છે કે મૂળ સ્થિતિ જો પૂછું મને તો સોંપી દો
યોગિક ને આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય છે નહીં. બાકી તો પોતપોતાના પરિણામ જે મુમુક્ષુ જીવ હોય ને એને તો બધું ખબર પડે કે આ બરાબર છે કે નહીં, આ બરાબર છે, બધું ખબર પડે એમને. પણ એ ચાલવા ન ઈચ્છતા હોય તો એ મુમુક્ષુતા જ નથી. પછી તો એનું મુમુક્ષુતા જ પ્રશ્નચિહ્ન છે આખી. એમ અનેકાંત સ્વરૂપથી આ બધું છે. ચાલો, નિશ્ચય ચારિત્ર પાના નંબર. પણ આ વિષય એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે સ્વચ્છંદ, દ્રઢતા, આપણે ઘણીવાર જીદને દ્રઢતા કહીએ એવું પણ હોય છે. આપણી જીદ પણ દ્રઢતા કહીએ. આ બધાનો માપદંડ શું છે? પરિણામોની નિર્મળતા. એ જ એનો માપદંડ છે, બીજું કોઈ એનો માપદંડ નથી. એનો રસ્તો એક એવું લાગે આપના કહેવા પ્રમાણે કે કોઈ પોતાનાથી જે ઊંચા છે એના રાહ પ્રમાણે ચાલવું છે. નહીંતર અન્યાય પોતાની જાત સાથે જ અન્યાય થઈ જાય. હું એમ માનું કે ના, હું સ્વચ્છંદ નથી કરતી બેન્સી ભલે કે, પણ મારે આગળનાને નું સલાહ પ્રમાણે જ ચાલવું પડે. પોતે પોતાને અન્યાય કરી બેસીએ, મુમુક્ષુ હોય તો પણ. એટલે તો કીધું ને કે બધી વસ્તુ જ્ઞાની ગુરુ સત્પુરુષો ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે એમના અભિપ્રાયથી બધું ચાલો. એમની વિશુદ્ધિ છે, પક્ષપાત નથી. હા, અપક્ષપાત રૂપથી તમારે જોવાનું અને જે અપક્ષપાતી હોય એનો આશ્રય લેવાનો છે. જે વ્યક્તિગત રાગ દ્વેષ જેના ન હોય એનો. રાગ દ્વેષથી સ્પર્શ કરીને જે આવે છે એ બધો એ સાચો નિર્ણય કરી જ ન શકે તમારે. અને જેને કોઈ રાગ દ્વેષ નથી, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ નથી, એના વચન ઉપર તમે દ્રઢ વિશ્વાસ કરો. બધો રાગ દ્વેષ જ તો બધાને માપદંડ પોતાની પ્રામાણિકતા, પરિણામોની નિર્મળતા એ છે. મોક્ષ માર્ગ સર્વથા બીજાને આધીન પણ નથી અને સર્વથા સ્વાધીન પણ નથી. તમારો પરિણામ કઈ જગ્યા જઈ રહ્યા છે તમારી વિશુદ્ધિ ઉપર આખું ડિપેન્ડ કરે છે. લોક ભલે શું કહેતા હોય એનો કોઈ વાંધો નથી. પરિણામની મુખ્યતા છે કે આપના પરિણામ કેવા પ્રકારથી છે. એટલે અત્યારે વર્તમાનમાં કોઈ અવધિ જ્ઞાની નથી, મનપરિજ્ઞાની નથી, વિશિષ્ટ ક્ષમધારી પણ નથી. તો અત્યારે છે ને પોતાની જાતે જ આપણે ઈમાનદાર રહેવું પડે. આપણે એમ વિચાર કરીએ કે આપણને કોઈ કહેશે, આપણને કોઈ, પણ અત્યારે એટલી ઓછી યોગ્યતા થઈ ગઈ છે કે બધાનું ધ્યાન રાખવું અને પોતાનું ધ્યાન રાખવું એવી યોગ્યતાવાળા ગુરુઓ નથી થતા. એ યોગ્યતા નથી. આપણે આપણું દિલ જઈને ખોલવું પડે કે ભાઈ મને આવા આવા પરિણામ થાય છે, આમ છે, તો આપને શું લાગે છે? નહીં તો કોઈ બીજા આપણને એકદમ ન કહેશે કે આ તમે ખોટા ચાલો છો, આ ચાલો છો. એમને પોતાનામાં મસ્ત હોય છે. એટલે પોતાના પરિણામ મુખ્ય છે. આમાં 100 વાતની એક વાત. ચારિત્ર, નિશ્ચય ચારિત્ર પાના નંબર 29. ગુજરાતીમાં 25, હિન્દીમાં 29. તત્વાર્થ પ્રબોધિની 15 મિનિટ છે. 15 મિનિટનો જ મેટર છે. આપણે નિશ્ચય ચારિત્ર, અભેદરૂપ નિશ્ચય ચારિત્ર શુભાશુભ
अभी तक क्या चल रहा था अपने? व्यवहार चरित्र चल रहा था। व्यवहार चरित्र बहुत बड़ा है। वास्तव में व्यवहार का ही विस्तार है। निश्चय तो इतना सा है। ये जब निश्चय प्रकट होता है तो फिर श्रेणी कितनी देर में चढ़ी जाती है? अंतर्मूर्त में। उसके लिए जो भूमिका है वो ही बहुत बड़ी है, और उसमें तो पता नहीं जन्मों लग जाते हैं। अभेद रूप निश्चय चारित्र शुभाशुभ सर्व विकल्पों से रहित आत्मा के मोह क्षोभ रहित साम्य भाव में स्थिर होने रूप है। यह भी दो प्रकार का है। एक तो संज्वलन कषाय के अति मंद उदय रहने पर होता है, जिसे एक देह शुद्धोपयोग कहा जाता है, तथा दूसरा चारों कषाय चौकड़ियों के संपूर्ण उपशम या क्षय से होता है, जिसे सकल शुद्धोपयोग या यथाख्यात चारित्र भी कहा जाता है। तो ये अभेद चारित्र शुभाशुभ सर्व विकल्पों से रहित आत्मा के मोह क्षोभ रहित साम्य भाव में स्थित होने रूप है। अब उसमें ऐसा विकल्प नहीं आएगा मुझे अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, मेरी चर्या को मुझे अच्छा रखना है। 28 मूल गुण संबंधी कोई विकल्प जहां नहीं आता है, वहां वो परिणाम तो है पर परिणाम का विकल्प नहीं है। उसका नाम शुद्धोपयोग कहलाता है। अहिंसा के परिणाम हैं, सत्य के परिणाम हैं, अचौर्य के परिणाम हैं, ब्रह्मचर्य के परिणाम हैं, अपरिग्रह के परिणाम हैं, परंतु प्रवृत्ति के विकल्प नहीं है। उस प्रवृत्ति का विकल्प अनुराग भाव से होता है। प्रवृत्ति करने का कोई विकल्प नहीं है, बस केवल एक तान होकर के अपने अभेद स्वरूप में लीन होना। आत्मा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मेरे में ही है, सब कुछ मेरे से ही है, सब कुछ मेरे द्वारा ही है, सब कुछ मेरे लिए ही है, मैं ही मैं। यहां कोई विकल्प नहीं है आत्मा में। आत्मा में ज्ञान है, विकल्प नहीं है। जानने का भी विकल्प नहीं है। वस्तु ज्ञान में आए पर उसको जानने का विकल्प नहीं है कि ये ऐसा है कि वैसा है, कि कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। ये उत्कृष्ट अवस्था है जहां काय की कोई प्रवृत्ति नहीं, इच्छा नहीं। मतलब प्रवृत्ति हो सकती है पर प्रवृत्ति की इच्छा नहीं। वचन की कोई प्रवृत्ति की इच्छा नहीं। वचन की प्रवृत्ति हो सकती है, वचन अभिव्यक्त करने की, भावों को अभिव्यक्त करने की इच्छा नहीं। और मन की कोई प्रवृत्ति की इच्छा नहीं। ऐसी ये एक अवस्था होती है। कोई ऐसा भी मानते हैं कि मन वचन की प्रवृत्ति जब तक है तब तक शुद्धोपयोग नहीं है, तो सर्वथा ये भी ठीक नहीं है। काय की प्रवृत्ति के समय भी, पर काय की प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है, तो बाहर दिख रही है काय की प्रवृत्ति। आप केवली भगवान का उदाहरण लो। केवली भगवान समाधि में है कि नहीं? और उनकी काय की प्रवृत्ति हो रही कि नहीं? वचन की प्रवृत्ति हो रही कि नहीं? सब, फिर भी संपूर्ण समाधि में हो। हाँ। तो ये रोक नहीं है
और उसी प्रकार से तीक्ष्ण जो स्वरूप सन्मुखता है, उस स्वरूप सन्मुखता में बलात् वचन की प्रवृत्ति हो जाए, बलात् काय की प्रवृत्ति हो जाए, तो उस शुद्धोपयोग को कोई ठेस नहीं लगती है। परंतु अगर अंदर इच्छा से प्रवृत्ति हो जाए तो शुद्धोपयोग को ठेस लगती है। ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। तत्व बड़ा सूक्ष्म है। सर्वथा ऐसा ही नहीं समझे कि आंख बंद होगी तो ही शुद्धोपयोग होगा, खुली आंख से भी होगा। हाँ, वो एक दशा है जहां राग द्वेष अति मंदता को प्राप्त हो जाते हैं, वहां वीतरागता है। कृपाळुदेव लिखते हैं, अमारामा अने वितरागमा अंतर करशो नहीं। ये लिखना, ये बोलना कितनी बड़ी बात है कि अमारामा अने वितरागमा अंतर करशो नहीं, भेद करशो, और वो भी बोल रहे हो। तो ये सब चीजें अपेक्षा से समझना चाहिए। तुम्हारा कई प्रश्न? એટલે પ્રવૃત્તિ થાય છે, ઈચ્છા નથી, એટલે વિચરે ઉદય પ્રયોગ કહી શકાય? यस, विचरे उदय प्रयोग, क्योंकि ये गुरु के लक्षण है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती गुरु के इन लक्षणों को कहा, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग। अब जब वो उदय अनुसार विचरण कर रहा है, उस समय भी वो शुद्धोपयोगी है कि नहीं? क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान वाला हर समय शुद्धोपयोगी है। प्रवृत्ति के समय भी शुद्धोपयोगी है और निवृत्ति के समय भी शुद्धोपयोगी है, बस। और शुद्धोपयोग और प्रवृत्ति के समय भी शुभोपयोगी है और निवृत्ति के समय भी शुभोपयोगी। ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। मुख्यता और गौणता की यहां पर अपेक्षा है। छठे सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग शुभोपयोग दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। हाँ, અવારનવાર એવો શબ્દ પ્રયોગ આવે છે, મોહ ક્ષોભ રહિત. हाँ, તો મોહ એટલે દર્શન મોહનીય અને ક્ષોભ એટલે ચારિત્ર મોહનીય. हाँ, ऐसा। તો એ કેવો જ્ઞાની થઈ જશે? हाँ, देखो, अब रहित क्या है? मोह रहित का मतलब होता है मिथ्यात्व से रहित, और क्षोभ रहित का मतलब होता है कषाय से रहित। पर यहाँ कषाय से रहित का मतलब ऐसा समझना कि प्रारंभ की 3 चौकड़ी कषाय से रहित, और संज्वलन में भी तीव्र संज्वलन कषाय से रहित, सूक्ष्म बुद्धि में नहीं आए ऐसी कषायों की यहाँ विवक्षा नहीं है। बुद्धिपूर्वक की कषायों की यहाँ पर विवक्षा नहीं है। निश्चय चारित्र तो नहीं ही है, इसमें तो क्या दिक्कत है? चारित्र तो नहीं है, सम्यक दर्शन है, वहां तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। हाँ, तो वो तो गई, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो सम्यक्त्व के जाने से तो उसमें आंशिक चारित्र है। निश्चय चारित्र जो प्रकट होता है वो तो 7वें गुण स्थान में होता है। वहां तो ऐसा है, वहां सम्यक दर्शन शुद्ध है, कुछ चारित्र शुद्ध थोड़ी है। चारित्र शुद्धि 4थे गुण स्थान में मानेंगे तो फिर तो वही केवल ज्ञान हो जाएगा, सब हो जाएगा, मुनि बनाने सब हो जाएगा। वहां तो सम्यक्त्व की शुद्धि है। उस सम्यक्त्व की शुद्धि में जितना चारित्र हो रहा है उतना चारित्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारित्र की बात हो रही है। ये निश्चय चारित्र जो बात कर रहे हैं ना अपन, ये 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग, ये दोनों शब्द की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर। शुद्ध भाव तो 4थे गुण स्थान में भी होता है, 5वें गुण स्थान में भी होता है, पर जिसको आगम में शुद्धोपयोग कहते हैं
वो शुद्धोपयोग चौथे पांचवें गुण स्थान में हो सकता नहीं है। शुद्ध भाव रूप शुद्धोपयोग तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शब्दों की मारामारी नहीं है। किंतु आगम में जिसको शुद्धोपयोग कहा है वो मुनिपने में ही संभवित है, इतना समझना चाहिए। फिर गौणता और मुख्यता से तो सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां सब अनेकांश से है। यही जिसके समझ में आ जाए उसी का बेड़ा पार हो जाता। हाँ, ओ जो यहाँ शब्द लिखा एक देश शुद्धोपयोग, एक, तो उसको अपन सराग चारित्र भी कह सकते हैं, एक देश शुद्धोपयोग जैसे होता है। हाँ, सराग चारित्र एक अलग छठे वस्तु गुणस्थान होगी। में एक देश शुद्धोपयोग बताया है, शुद्धोपयोग है। एक देश शुद्ध, हाँ, सराग चारित्र छठे गुण स्थान में होता है। तो ये छठे गुणस्थान में एक देश शुद्धोपयोग भी होता है। एक देश शुद्धोपयोग यहाँ 10वें गुण स्थान तक चल रहा है। 7 से 10। हाँ, वहाँ एक देश शुद्धोपयोगी है। हाँ, अभी देखो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। एक देश शुद्धोपयोग चारित्र 7वें से 10वें गुण स्थान तक होता है। यहाँ एक देश ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी कषाय का अंश उदय में है, इसलिए। तथा सकल शुद्धोपयोग चारित्र 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। 11वें 12वें गुण स्थान में, क्योंकि कषाय अंश का किंचित भी उदय नहीं है, इसलिए वहां पर सकल शुद्धोपयोग है। तथा संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति मूलक महाव्रत आदि के योगात्मक आचरण रूप सराग चारित्र छठे गुण स्थान में होता है। समझ में आया? ये सराग चारित्र, ये आगे वितराग चारित्र का, उसके गुणस्थान 7वें और उसके आगे के हैं, और सराग चारित्र है वो छठे गुण स्थान में होता है। इस प्रकार से संक्षेप में अभेद चारित्र का कथन हुआ। इसको प्राप्त करने का उपाय भी पूर्ववत ही जानना चाहिए। એવું કીધું કે સકલ શુદ્ધોપયોગ ચારિત્ર 11 અને 12માં કીધું, પણ 11માં તો સૂક્ષ્મ લોભ છે ને હજી कुछ नहीं है वहाँ। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में होता है। ના તો 11માંથી કેમ એ પડે છે? वो सत्ता में है। 11वें गुण स्थान में चारों कषाय सत्ता में है, अगर हो तो। मिथ्यात्व भी सत्ता में हो सकता है 11वें गुण स्थान में, तो वैसे तो मिथ्यात्व में भी आ सकता है, पर सत्ता में होना, उदय में होना, इन दोनों में अंतर है। सत्ता में है तब तक आत्मा को वो मलिन नहीं कर रहा है, उदय में है वही मलिन कर रहा है। तो 10वें गुण स्थान में लोभ का उदय है, इसलिए चारित्र को एक देश का, और 11वें गुण स्थान में सत्ता में सारा सारा है, परंतु उदय में कुछ भी नहीं है, इसलिए एकदम निर्मल स्फटिक जैसा आत्मा हो गया। जैसा 12वें गुण स्थान में निर्मल स्फटिक जैसा है, उसी प्रकार का यहाँ 11वें गुण स्थान में भी निर्मल स्फटिक जैसा चैतन्य हो गया, इसलिए वहां सकल शुद्धोपयोग का। और फिर 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल है। उसको शुद्धोपयोग नहीं कहा, उसका फल है, वहां पर प्रयत्न पूर्वक साधा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से निश्चय चारित्र का वर्णन किया गया। ऐसे चारित्र की प्राप्ति सबको हो, इसी भावना के साथ। इस 13वें में तो सब कुछ चला, 12वें में ही सब सत्ता चली गई। क्षीण मोह गुण स्थान में आ गया तो वहीं पर भी सब चारित्र मोह की सत्ता चली गई। इसके बाद अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। बस इतना ही अपने को करना है। क्या करना है? केवल अपने को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और कुछ नहीं करना है मात्र। हाँ, इतना सही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने को वास्तव में पता पड़ेगा कि वास्तव में है ये इतना सही, पर अनादिकालीन आवरण से
हमको बड़ी कठिनाइयां। बहुत सामान्य वस्तु है पर हम बहुत असामान्य हो चुके हैं। तो इतना अधिक असामान्यता के रास्ते पे अपन चल पड़े, अब अपने को इजी होना बहुत कठिन पड़ रहा है, क्योंकि हम इतने कुटिल हो चुके हैं। इतनी कुटिलता, इतनी वक्रता आ चुकी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सबकी वक्रता है। जीव इतना टेढ़ा हो चुका है कि सीधा अब सीधा हो जाएगा, इसके बाद तो बहुत सरल है सीधा रहना, परंतु एक बार कोई सीधा करे तो एक तो सीधा होना चाहे, करना चाहे तो भी सीधा होना चाहे, नहीं तो नहीं हो सकता। और फिर कोई करने वाला भी मिलना चाहिए, सीधा करने वाला। सीधा करने वाला मिलता है तो थोड़ा सीधा करता है उसको, परंतु उसको फिर कंटाला आ जाता है, आपड़ा आटलू सीधू था वो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो सब सांसारिक सुख गया। जब जीव इस परमार्थ के मार्ग पे आता है तो उसको पूर्व की जो प्रकार की अनुराग वगैरह सब पड़े हैं, तो उसको यूँ होता है कि मेरा सब जा रहा है अभी तो, क्योंकि वो वैराग रखने की बात करेंगे नहीं, ये करेंगे, सब करेंगे नहीं, सब कल्पनाएं बता देंगे यहाँ कि यहाँ तुम्हारे सब रिश्ते, नाते, संबंध आज तक तुमने मान रखा है वो सब कल्पनाएं हैं। तो उसके तो सारे कल्पनाओं का महल सारा का सारा ढह जाता है, और वो कोई भी अपनी कल्पना से बनाया हुआ महल को ढहता हुआ नहीं देख सकता है। कैसे मैं मानूं कि यार ये मेरे पापा नहीं है, ये मेरे मम्मी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा पिता नहीं है, ये मेरा मित्र नहीं है, मैं कैसे मान लूं? और लास्ट में ये कहा जाएगा ये आपके गुरु नहीं है, ये आपके भगवान नहीं है। और ये मानना तो जीव को सबसे कठिन है। इसमें इतना वो रामकृष्ण परमहंस को, सॉरी वीणाबेन 2 મિનિટ લઉં તમારે, એમને મને આજ્ઞા કરી તમારે 10:15 પૂરું કરી દેવાનું, આજે સફાઈ છે ને। तो रामकृष्ण परमहंस ने वो काली माँ की उपासना कर, इतनी पकड़ हो गई उनकी उपासना में द्वैत की, तो वो उनसे छोटे बच्चे की तरह बातें करते, मतलब उनको जीवंत भगवान ही लगते थे वो। और इतनी उनकी विशुद्धि, एक दूसरे से प्रेम, तो उनको मूर्ति में वही दिखते थे सब, और उनके मन में बस वही माताजी 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 माताजी, बस माताजी के अलावा कुछ दिखता नहीं, सारा संसार उनको मारूप ही दिखता है। इतनी विशुद्धि होगी उनकी, परंतु अंतिम सत्य प्राप्त नहीं, क्योंकि अंतिम सत्य में 2 वस्तुएं होती नहीं, अंतिम सत्य में केवल एकत्व है। फिर भी वो द्वैत के झूले में झूल रहे थे, भावनाओं में बह रहे थे सब। फिर वो उनको अद्वैत गुरु आए तोतापुरी, फिर उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि अब मुझे अंतिम सत्य की उपलब्धि कराई जाए। तो उन्होंने सबसे कठिन काम करने को कहा कि ये तुमने, ये माताजी मेरे हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये तुमने मान्यता बना रखी है ना, पहले उसको काट डाला जाए। तुम तलवार के द्वारा उस माँ का सिर कलम करो पहले तो। ये बहुत बड़ी मान्यता बना रखी है, वो मान्यता जब तक नहीं जाएगी तब तक तुम एकत्व में नहीं आ सकते हो। और वो इतने शुद्ध थे, अंतिम बोध लग गया, देशनालब्धि उनको लग गई। तो अभी तक मैंने अपनी भूमिका को विशुद्ध करने के लिए ये कल्पनाएं कर रखी थी। देखो, कल्पनाएं पूर्व भूमिका में बहुत उपकारी होती हैं। जैसे किसी का चित्त बहुत स्त्रियों की तरफ जाता है तो वो एक में कल्पना करता है कि ये मेरी पत्नी है और इसके सिवा मेरा कुछ नहीं। ये कल्पना उसको सहायकारी हुई कि नहीं? उसी प्रकार से फिर घर गृहस्थी आदि से भी वो हो जाता है निवृत्त। शुद्धोपयोग की भूमिका और वैराग आ जाता है उनको, अब शुद्धोपयोग में जाना है। परंतु अभी देवशास्त्र गुरु का संसार तो छोड़ दिया, पर अभी अनुराग भाव है। तो अब जो कल्पनाएं, जो संरक्षण वगैरह माता से मिलता था, पिता से मिलता था, उससे मिलता था, अब सारी भावनाओं को उन्होंने एक गुरु में कन्वर्ट कर दिया।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। किसके लिए कर दिया ये? और ऊंची भूमिका में जाना है। और उन सांसारिक कल्पनाओं से बचने के लिए उन्होंने एक बीच की कल्पना डेवलप की कि वो संसार में भी नहीं जाए। उसके लिए तो अपने आप को एक गुरु की कल्पना की कि ये एक मेरे गुरु हैं और बस मैं उनका हूं और वो मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ जानता नहीं। ये एक बेहतर कल्पना वहां से यहाँ डेवलप हुई। और अंतिम सत्य की प्राप्ति जब होती है, बोध होता है, तो फिर ये कल्पना भी नष्ट हो जाती है। और ये कल्पना नष्ट हुए बिना अंतिम सत्य की प्राप्ति भी होगी नहीं। ऐसा ये सारा वस्तु व्यवस्था है। सत्य है वो कल्पना से बिल्कुल अलग है। किसी कल्पना से सत्य की प्राप्ति हो सकती नहीं। वो बिल्कुल अकेला है, एकत्व को लिए हुए है, विशुद्ध है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वयंभू है। उसमें द्वैत का कोई स्थान नहीं। इतना साहस करना पड़ता। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद ते वरते जय। हो प्रणमो पद ते वरते जय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।